वापस से okay. So now the session starts with what an entrepreneur is or what do you mean by an entrepreneur. So basically an entrepreneur is derived from a French word which is entreprendre, and entreprendre which means to undertake. So basically an entrepreneur means a person who organizes and manages any enterprise, especially a business, usually with a considerable risk and initiative. Now we are using the term considerable risk. So there is going to be a calculated amount of risk and initiative. So what do you mean by a considerable initiative and risk? This basically we are going to discuss in the later slides. And in simple words, if we talk about that what an entrepreneur basically is, so that entrepreneur is a person who is going to maximize his business, maximize the profit with a certain amount of risk. Now the terminology comes that what is an entrepreneurship? So an entrepreneurship is the key to innovation, productivity and effective competition. By innovation, I mean that you must have a new and a fresh idea. You should not copy your idea with somebody else is having a same idea and you just copied it. That particular thing is not innovation. According to a need of the customer, you need to come out with a new idea with your own thinking. That particular thing we can consider in the innovation. So when a person realizes his ability concerning economics, marketing, international business, and research. So when a person realizes his ability or capacity and makes its practical use to establish a new business unit, this particular activity is known as the entrepreneurship. He has also been the dean and director. So he has over 16 publications and has published more than 5 case studies related to her research areas. He has also authored books on modern marketing management and advertising management. Okay. Dr. So Shikhara Jain, when ma'am, you are going to have a new idea and you are going to scale up to a business, you are going to make a profit, you are going to have a capital with that, then that particular process is known as the entrepreneurship. There are four basic blocks of the entrepreneurship, starting with the builders, then the opportunist, then the specialist, and the innovators. By builders, we really don't mean that a person who build the houses. Builders may name as like that, but here we are considering the builders who are actually having their own business. Kind words. It's always awkward. This is the most awkward time for any resource person to be listening to their own introduction. But thank you so much. And so elaborately talking about what I've done all my life. But it's been so good so far. And thank you for having me as a resource person on something as crucial as. So by builders, we mean that when you are going, like by builders, we don't mean that a person who is going to build a whole house. They might be considered as an entrepreneur, but the builders are, and an entrepreneurship, the builders are, who build or scale up an idea to a business, and they are having a very keen observation to the market that whether they are going to do like, okay, what is the need of the customer, what is the need of the market, then they are going to come up with an idea, they are going to scale up it into an incredible successful business, and that particular thing is known as the builders. After that comes the opportunist. Opportunist means कि एक पर्टिकुलर उनके पास अपॉर्चुनिटी था, जिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मीन्स व्हाट कि आपने कोई एक राइट डिसीजन एट द राइट सेट ऑफ टाइम पे आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया अपना कैपिटल, दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज द अपॉर्चुनिस्ट कैटेगरी. देन कम्स द स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट में अगर आपके पास कोई स्पेशलिटी है जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, वो पर्टिकुलर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे कम्स अंडर द स्पेशलिस्ट. एंड देन आर द फाइनल कैटेगरी विच इज द इनोवेटर्स.
तो इनोवेटर्स का काम क्या होता है, जो भी वो काम करते हैं, दे जस्ट पुट देयर हार्ट एंड सोल इन इट, दे लव टू डू वॉट एवर दे आर डूइंग, एंड सो दे जस्ट कम आउट विद एन आइडिया विच इज hits the business. So that is the final category, which is of the innovators. So these are the basic blocks of the entrepreneurs, where they are divided into the 4 categories. Now coming to the next topic, which is a very important asset of an entrepreneur, which is the interpersonal skills. What interpersonal skills an entrepreneur should have during his or her journey? First is the risk. They must have the ability to take the risk. Like, say for example, I should ask, rather than telling myself, I should ask you that what do you mean by the risk? Like, please write it on the chat box that according to you, what is a risk? Maybe like getting the chocolates from a kirana store and not paying them is a risk, or maybe hiding your copy in cheating something in a examination is a risk, that okay, you would be getting caught. Or what exactly is risk according to you? Like taking a selfie in a dangerous nearby thing is a risk to you. What is basically a risk to you? How you define a risk? Anybody? Risk is all about initiation or execution of the new idea. That is suggested by Kartikeya. Anybody else who can tell me that what basically a risk is? झूठ बोला था घर पे और मूवी देखने गए थे और घर पे आप पकड़े जाएंगे, दैट मे बी अ रिस्क। कह रहे यार ऐसा नहीं हो कि पता लग जाए। या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गए, बढ़िया समोसे वमोसे खरीदे एंड दुकान वाले को कम समोसे का रेट पे किया, ज़्यादा समोसे खरीदे थे। इज दैट अ रिस्क? व्हाट इज अ रिस्क अकॉर्डिंग टू यू? ओनली वन स्टूडेंट हैज रिप्लाइड सो फार। व्हाट अबाउट अदर्स? या तो फिर ये हो सकता है कि भाई किसी ने रिस्क फेस ही नहीं किया अभी तक लाइफ में। हरी ओम सोनी हैज सजेस्टेड दैट द आइडिया कैन इम्प्रूव एनी बिजनेस और टेक इट डाउन जस्ट लाइक अ शेयर मार्केट। ओके, दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। Having lunch in your class, Pavan, I agree with you. Having a lunch in your class, and especially a teacher like me, when the class is going on and particular teacher is going to come, something which can have a dangerous results, definitely. So, okay, all these are the examples of having the risk. Now, coming to the thing that what a risk is going to mean in the life of an entrepreneur, or how they are going to evaluate. In the definition, I have suggested that an entrepreneur is going to have a calculated risk. So, what does that calculated risk means? Like Hari has suggested that if I am going to invest my capital in the share market or in the mutual funds, तो अगर आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, बेसिक थिंग जो दोनों में कॉमन रहता है वो क्या? अगर आप शेयर मार्केट में भी किसी कंपनी के ऊपर अपना पैसा लगा रहे हो, तो आप पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से पड़ताल करते हो कि भाई कंपनी का टर्नओवर कितना है हर साल का, उसका कंपनी का पास्ट हिस्ट्री कैसा रहा है, ये सारी रेप्यूटेशन कैसी है उसकी मार्केट में, ऐसा तो नहीं कि क्रैश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पता करने के बाद ही आप अपना कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। सेम गोज विद द टर्म, लाइक जब भी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने म्यूचुअल फंड्स का देखा हो तो पहले तो पूरा एडवर्टाइजमेंट आएगा, एट द एंड दे से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली व्हाइल गोइंग फॉर द म्यूचुअल फंड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट रिस्क? क्योंकि यहाँ पर भी आपका मार्केट अगर ऊपर जाएगा या आपका मार्केट अगर नीचे आएगा, तो अगेन अकॉर्डिंग टू द मार्केट देयर इज गोइंग टू बी द कैपिटल इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज एज पर इन द म्यूचुअल फंड्स। लाइक एक मूवी आया था OMG, आई होप आप लोगों में से सभी लोगों ने तो नहीं, लाइक 70% लोगों ने तो आई गेस देखा ही होगा OMG मूवी। तो उसमें काफ़ी सेंसिटिव इशू उठाया हुआ था, लाइक ये इशू पहले भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया है, बट द एक्ट ऑफ गॉड, लाइक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें सीधे दिया रहता है कि अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी जैसे कोई चीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो चीज़ है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसमें कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा, दैट इज़ बाय द एक्ट ऑफ गॉड। तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छी मूवी बनी थी। तो दैट इज पर्टिकुलर द रिस्क एनालिसिस कि आप कितना, क्या आपका ऊपर होगा नीचे होगा, दैट इज पर्टिकुलरली द कैलकुलेटेड रिस्क।
या फिर होता है कि भैया गोवा गए हैं छुट्टी मनाने के लिए और सीधे कैसीनो में गए, जितना पैसा था अपने पास सारा अपने सेविंग लगा दिया। अब या तो आप लखपति करोड़पति बन सकते हो और या तो सीधे खाकपति बन सकते हो। तो दैट इज अ रिस्क। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, दैट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। दैट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप सोच समझ के किसी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सारी चीजें सोचने समझने आंकने के बाद आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो दैट इज पर्टिकुलरली अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर की अगर हम स्किल की बात कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू हैव अ सेट ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्क फॉर हिज और हर बिजनेस। देन भाई आई गेस दिस इज अ वेरी कॉमन फेस। आई गेस आप में से तो काफ़ी लोगों ने इनकी शॉप्स को, इनके कैफ़े को विजिट भी किया होगा। चाय सुट्टा बार, the most common franchisee available in Indore, that is the local success story. तो अगर चाय सुट्टा बार की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें से मेजर जो थे वो थे हमारे अनुभव दुबे। उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उज्जैन के रहने वाले थे, इन्होंने सिंपली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते भाई बोले कि अब चलो अब चाय पीने चलते हैं। रात के कुछ 1-2 बजे होंगे और चाय उन्हें नहीं मिली। देयर कम्स द आइडिया दैट ठीक है यार चाय बेचते हैं, तो अब चाय में ऐसा क्या होगा कि पूरी पब्लिक इंदौर की चाय छोड़ के आपकी चाय पीने के लिए आए। तो देयर कम्स द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी। सो एंड इन द कुल्हड़, इंदौर में कुल्हड़ में चाय आपको कहीं और नहीं मिलेगा, स्पेशली मसाला टी एंड द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द टी। दैट इज अ न्यू concept given by them under the chai sutta bar. Or they are going to have a unique concept which is the tea in the kulhar, which is a desi look as well as a desi taste. It is going to have the great taste. Ambience की अगर बात करें तो जो सुट्टा है अगर आप उसकी बात करें तो that is coming from a Sanskrit word which means सूत, जिसका बेसिक मतलब होता है कि एम्बियंस। तो दैट इज पर्टिकुलरली दैट एंड चाय सुट्टा बार इज गिविंग यू अ ग्रेट एम्बियंस। इट इज हैविंग अ बेस्ट प्लेलिस्ट ऑफ म्यूजिक। जब भी आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको गानों का प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। इट प्रोवाइड्स यू अ ग्रेट एम्बियंस। myriad of choices, by myriad of choices I mean that they are having 142 plus choices in the menu bar. So there are many number of things which is makes this chai sutta bar different from the other cafes. So this is about emphasizing the need of a customer. उन्हें चाय नहीं मिली तो वहाँ से ये नया concept आया। Apart from this particular example, आज की पेंडेमिक एरा में मैं अगर बात करूं emphasizing the need, तो भैया सबसे पहले तो नीड आती है सैनिटाइजर की, मास्क की। और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर नीड से कितनी सारी इंडस्ट्रीज आज की डेट में सिर्फ सैनिटाइजर बेच रही है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ आपके डिसइंफेक्टेंट्स बेच रही है। दे गॉट अ न्यू जॉब, they got a new idea how they're particular different from others, they are making business out of it. Same goes with the COVID vaccine. Different countries, different pharmaceutical companies, everybody is in the competition. कौन पहले प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे जल्दी से जल्दी आपका वैक्सीन आएगा, कौन सी कंपनी होगी जो अपना जीडीपी इंक्रीज करेगी। सो ऑल दिस इज रेजिंग द नीड एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, द मार्केट इज रेजिंग। कमिंग टू एन अनदर कंसेप्ट, ओला। ओला ने कंसेप्ट कॉपी किया ऊबर का, लेकिन तब भी ऊबर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्केलेबल मार्केट बिजनेस कैब्स में आप बात करो या फिर आप आपका जुगनू के रेस्पेक्ट में बात करो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केलेबल बिजनेस इज ऑफ ओला। लाइक 2 व्हीलर से लेकर के, कैब से लेकर के, ऑटो से लेकर के, इतनी सारी वाइडेबिलिटी, वाइड एप्लीकेशन जो ओला ने लाया। एंड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, लाइक उबर की बात करें तो वो विदेश का कंसेप्ट था जहाँ पर वो उनका इतना नहीं था। लाइक इंडियंस की अगर बात करें तो दे हैव अ मेंटालिटी कि हमारा प्रोडक्ट सबसे चीप होना चाहिए, जब भी वो कम रेट में रहेगा तो पब्लिक जल्दी उस चीज़ को लेने के लिए आएगी। Same concept is applied by Ola, and that's why it is superior in market as a scalable business in comparison to that of the Uber and in comparison to that of the Jugnu. So again the next example is the OA24. रात के 3:30 बजे किसी को भूख लगी, उन्होंने सिंपली ऑर्डर करने की कोशिश किया, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या आएगा, कुछ नहीं आया।
देयर द कंसेप्ट कम्स कि लाइक खुद का किचन होना चाहिए, खुद के हमारे डिलीवरी बॉयज़ होने चाहिए, हम पूरा खाना जो है वो किसी भी 24/7 कभी भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम दें. देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ द OA24 विच इज़ कॉपीड बाय द Zomato, Swiggy एंड अदर्स. बट इनका कंसेप्ट उतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं हुआ. दे आर कम्पीटिंग, लेकिन अभी भी अगर मैं और टाइमिंग्स की बात करूँ तो OA24 इज़ अनबीटेबल. Likewise, Redbus is also an best example of that. So इस तरीके से according to depending upon the need of the customer, you need to emphasize the market. According to the market, you need to come out with an idea which can generate a scalable business. Then coming to the basic assets of attributes. What set of attributes an entrepreneur should have in order to become a successful entrepreneur? So basically, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज हार्ड वर्क. जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप अचीवमेंट नहीं ला सकते हो. तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि हाँ, आफ्टर ऑल अगर आपको आपके मार्केट में बाकी कंपेटिटर्स के साथ ऊपर उठना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट में क्या चीज़ अभी किस चीज़ का अपडेशन हुआ है, वो चीज़ के हिसाब से आपको आपका मार्केट जो है, आपके जो भी बिजनेस है आपको उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल. सो हार्ड वर्क इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, डेडिकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट. जब तक आपको आपके काम से प्यार नहीं है तब तक आप 24 घंटे उस चीज़ को नहीं दे सकते हो. तो अगर आपको 24 घंटे का टाइम अगर उसी चीज़ के लिए देना है, यू नीड टू बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स वॉट एवर यू आर डूइंग. सो देयर कम्स द वर्ड डेडिकेशन. देन ट्रूथफुल, लाइक भाई अपने को तो कुछ नहीं है, तेरा भाई तो शेर है, 2-4 क्या 10 को भी मार गिराएगा, ऐसे कैसे, आके पूछ ले किसी से, भाई तेरा शेर है. अगर इसी तरीके से बिजनेस चलाना है तो बिजनेस पक्का डूबेगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाइयों को सुनना चाहते हैं, अपने जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. कभी भी कोई बिजनेसमैन या फिर कोई एक अच्छा एंटरप्रेनर है वो हमेशा काफ़ी कामली इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करेगा व्हाट दे आर फीलिंग इन, क्योंकि जब तक वो इन चीज़ों को नहीं सुनेंगे तब तक वो उसे इम्प्रूव नहीं कर सकते. तो यू नीड टू बी ट्रूथफुल टू यूर सेल्फ, नॉट टू एनीबडी एल्स, बट यू नीड टू ट्रूथफुल टू यूर सेल्फ. देन इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का बेसिक मतलब क्या है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऑन योर मॉरल प्रिंसिपल्स. whatever ethics you are having, you must stay strong on that particular principle. टाइम में अप एंड डाउन होगा बट आपको अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ने हैं. आज की डेट में ड्यूरिंग द पेंडेमिक अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जिसने 24/7 अपने 12 महीने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पे किया है, उनका ध्यान रखा है. जब लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी में ऐसा नहीं हो कि उन्हें 50% पे किया जाए, समवॉट लाइक दैट, या फिर किसी और फैसिलिटी को कम किया जाए. ऐसा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन था जो अपने एम्प्लॉयज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना था. आफ्टर द लॉकडाउन फ्लाइट टिकट्स भी अरेंज किया. दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज टाटा. तो अगर आज की डेट में मैं ह्यूमैनिटी की बात करूं या रतन टाटा की बात करूं, बात एक ही है. So this is the one of the example which I have quoted in the picture. This is the recent example जिसमें 2 साल पहले जिन्होंने जो उनका एक्स एम्प्लॉय था उसकी तबीयत खराब हुई, उसके लिए भी देखने के लिए रतन टाटा जी गए थे. तो दैट इज बेसिकली इंटीग्रिटी, दैट इज बेसिकली योर मॉरल वैल्यूज. देन कमिंग टू द डेडिकेशन पार्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेडिकेशन पार्ट. कर्नावत पान का नाम आप लोगों ने इंदौर में सबने सुना होगा. कर्नावत पान बाकी पान स्टोर से कैसे बेहतर है? ऐसा क्या किया उसने कि उसके पास इतनी भीड़ जाती है, बाकी कहीं कोई नहीं जाता? द बेसिक रीजन इज उन्होंने एक पान जैसी एक चीज के डिफरेंट फ्लेवर्स निकाल दिए. दैट इज द इनोवेशन, दैट इज द आइडिया. और आज उससे वो इतना बिजनेस एक्सपांड किया है कि पहली चीज उन्होंने डेडिकेशन दिखाया टूवर्ड्स देयर बिजनेस, तो बिजनेस एक्सपांड हुआ. दूसरी चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति उन्होंने डेडिकेशन दिखाया कि भाई पूरे टाइम अगर कोई पान की दुकान में बैठा है खाना कब खाएगा, तो उन्होंने उसी के साथ साथ मेस चालू किया. मेस में 50 रुपये में उन्होंने पूरा खाना प्रोवाइड करना चालू किया. पहले धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखा, फिर नियर बाय जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए रखा, एंड नाउ इट इज़ डेवलप्ड इनटू द रेस्टोरेंट. So this is how an idea develops. This is how the business expansion, the entrepreneurship, the scaling of the business takes place.
देन कमिंग टू एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं, पहले आप लोग मुझे बताइए, देन वी विल शेयर द एग्जाम्पल्स. व्हाट डू यू मीन बाय एन एप्टीट्यूड? प्लीज राइट इट ऑन द चैट बॉक्स. Then by an aptitude, what do you mean? What should an entrepreneur do with an aptitude? What set of right aptitude should an entrepreneur should have? Anybody? Anybody? Like aptitude is not a big thing यार. आज की डेट में तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो तो उसमें पहले लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या टेस्ट होता है आपका बेसिकली? Basic skills, IQ, intelligence, natural ability, ability to do something. That is the best answer, Himani. Ability to do something is basically your aptitude. कि आप क्या करना चाहते हो और कितने अच्छे तरीके से आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, that is basically an aptitude. तो अगर aptitude की अगर बात करें कि aptitude को हमें अगर और समझना है तो सुपर 30 एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की जिसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जिसमें खुद कोई ऐसी कैपेबिलिटी होगी वही राजा बनेगा, ना कि अब तानाशाही चलेगी. दैट इज द बेसिकली थिंग द एप्टीट्यूड मीन्स. मैडम कहाँ कोई कोरिलेशन है, कहाँ एंटरप्रेनर, कहाँ एप्टीट्यूड, कहाँ राजा राजा, आप कहाँ जा रहे हैं मैडम? नाउ द कोरिलेशन कम्स कि आज की डेट में पहले क्या चलता था, अरे फलाना तो सिंधी है, इसका बेटा भी देखना सिंधी बनेगा, फलाना तो डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, लॉयर है, लॉयर का बेटा तो लॉयर बनेगा. वी हैव एन एग्जाम्पल हु इज अ मिथ फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. आई थिंक पेटीएम तो सभी चलाते हैं, सभी के फोन में होगा. द फाउंडर ऑफ पेटीएम, विजय शेखर शर्मा, he is the person who belongs to a family जहाँ पर उनके पिताजी जो है वो टीचर हैं, मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, and he is running a successful business. So this is about the aptitude. Like ज़रूरत नहीं है अब इस चीज़ की कि जो बिजनेसमैन पहले था उन्हीं का बेटा या उन्हीं की बेटी जो होगी अब वो बिजनेस रन करेगी. That is a myth now. Now coming to an attitude. तेरे भाई में तो बहुत एटीट्यूड है, कोई बंदी आए तो सही, अपन तो बहुत सख्त लौंडे हैं. What does an attitude mean? उस बंदी में बहुत एटीट्यूड है यार, इससे तो बात ही नहीं करने जाएंगे. What does an attitude mean? रवैया, वर्दी, anybody else? Please write it on the chat box. What does an attitude means? बेटा वी नीड टू कीप इट इंटरैक्टिव. इंटरैक्टिव तभी होगा जब आप इंटरैक्ट करेंगे. तो व्हाट डज एन एटीट्यूड मीन्स? पवन के अकॉर्डिंग आवर विजन टूवर्ड्स द थिंग, हाउ टू रन अ बिजनेस, द वे अ पर्सन कैरीज पर्सनालिटी. प्रतीक्षा, दैट्स राइट. फीलिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एन इवेंट और सिचुएशन, वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेव. An attitude defines the characteristics of a person. How the person is, basically, that is defined by an attitude. The best example which I am giving you to understand what's the meaning of an attitude is the founder of the Byju's or the man behind the Byju's, which is the Byju Ravindran. अगर इनकी पर्टिकुलर बात करें कि इनकी क्या स्टोरी थी, इन्होंने कैसे बायजूस ऐप पे आए, तो बेसिकली इन्हें मैथ्स से बहुत प्यार था. तो ही वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इन्हें मैथ्स बहुत पसंद था. ये कैट का एग्जाम देते थे, इन्होंने पहली बार कैट दिया 100%. तो लोगों ने बोला अरे गलती से आगे होंगे, ऐसे 100% आते हैं या तुक्के तुक्के में आंसर लगा दिया होगा इसने, ऐसे ही आगे होंगे. दूसरी बार इसने दिया, अगेन 100%. फिर लोगों को लगा यार नहीं यार बंदे में दम है. इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ाई अगर होती है तो वो हॉस्टल के अंदर होती है. लाइक क्लासेस में उतना नहीं पढ़ सकता इंसान जितना हॉस्टल में पढ़ सकता है. तो इन्होंने अपने हॉस्टल मेट्स ने जाकर के पूछा कि भाई ऐसी क्या ट्रिक है, ज़रा हमें भी बताओ, 100 आउट ऑफ 100% कैसे स्कोर कर रहे हो. इन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था, इन्होंने उन्हें पढ़ाया. तो जब ये पर्टिकुलर फ्लो चल रहा था, पहले 20 स्टूडेंट्स आए, 30 स्टूडेंट्स आए, 50 स्टूडेंट्स आए.
Then a huge mass around 200 to 300 students start coming, and he has to organize a stadium. He has to literally order a stadium for his students to take a class. One day, one of the IIM graduate, one of his student who has done the graduation from IIM, he asked him, he suggested him that, oh, why don't you take the mass class? And then he worked on that particular idea, and today he is the man behind the Byju's learning app. So he has given a basic slogan that fall in love with learning, because he was very keen to teach maths. He was very keen towards going ahead in academics. So whatever he suggests is that fall in love with whatever you do. He has an objective that whatever you do is basically a learning part, so fall in love with learning. This is the best slogan. And apart from that, if you ask about the style mantra for this particular person, he has given again a nice slogan: keep things simple and sophisticated. So that's the short form for the KISS. So this particular person has coming up with the new slogans which is getting new attention for the youth. Apart from that, in 2018, Harvard's Business School has adopted his particular person as a business case to study him, what his strategy is, how he reaches the market, इतने सारे followers अचानक से कैसे बढ़ गए इनके, ये सारी चीज़ों को इन्होंने study करना पड़ा. So this is particularly a big achievement. Then comes the next attribute, basic skill set में next चीज़ जो आती है, that is the prudence. प्रूडेंस का मतलब होता है जजमेंट. हिंदी में बात करें तो विवेक. तो भाई स्वामी विवेकानंद जी को उनके विवेक के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है. तो अगर एक एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो आपको बहुत काम, आपको बहुत विवेक आपके अंदर होना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? आप जब भी कोई नया आइडिया शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि ये मार्केट में चलेगा. 4 लोग मना कर देंगे कि अरे भाई तेरा आइडिया फ्लॉप होने वाला है, कुछ नहीं होना इससे. यू गेट डिमोरलाइज, यार अब करूँ नहीं करूँ, am I going in the right path or I am going in the wrong path? That particular judgment, that whether you are going on the right direction, whether you are going in the wrong direction, that is particularly a skill attribute which is known as the prudence, which an entrepreneur should have. He should have that particular skill that, okay, whatsoever person is saying that particular person opinion, but my opinion, whatever I am doing is right. पर्टिकुलर पर्सन को ये समझ आना चाहिए कि कहाँ पर वाकई वो नेगेटिव जा रहा है और कहाँ पर वो वाकई पॉजिटिव जा रहा है. सिर्फ लोग उसकी लेग पुलिंग करने के लिए उसको ये चीज़ बोल रहे हैं. देन कम्स द नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज़ द मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस. क्राइसिस टाइम हर बिजनेस में आता है. उस क्राइसिस टाइम को आपने कितनी अच्छी तरीके से विद स्टैंड किया है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में. वो होता है गिर के ऊपर खड़े होना. अदरवाइज सारे शेयर बिक जाएंगे, योर मार्केट विल कोलैप्स, योर बिजनेस विल कोलैप्स, देन हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. So you need to keep yourself motivated, you need to have confidence in yourself. तभी आप एक बिजनेस एम्पायर को अपने साथ चला पाओगे. अदरवाइज अगर खुद ही एक ओनर है एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस का, अगर वो ओनर ही रोज डिप्रेसिंग बात करेगा तो फिर बाकी लोग कैसे मोटिवेटेड फील करेंगे. सो दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट द मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, दैट यस आई वॉन्ट, आई कांट, आई वॉन्ट, हाउ डू आई डू इट. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाते हो, जहाँ पे आप ये निश्चय कर चुके होते हो कि आपको ये करना है. उसके पहले तक आप सोचते रहते हो कि ये आइडिया काम करने लायक नहीं है. उस पर्टिकुलर स्टेप के बाद समझ में आता है कि नहीं, ये आइडिया काम करने लायक है, तो आई वॉन्ट टू डू इट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ आई वॉन्ट, हाउ विल आई डू दैट. Then I will try to do that, I can do that, yes I will do it, and finally one day you are going to achieve that. So my friends, in which particular step you have reached today? That is an important question if you want to go in the entrepreneurship. That is a particular thing. Please write on the chat box at what particular step you are. Then coming to the next attribute. Okay, just write it on a chat box that in which particular step you are in. Then we will move forward with the next attribute.
Please respond. Mahi Jaiswal has responded, I want to do it. Kartikeya has responded, I will do it. Oh my God, then Kartikeya is just one step ahead. Kartikeya, by the end of the session, we are definitely going to discuss what your idea is, because you will do it, definitely. Trying to do it, I want to do it. Most of them are in the stage of I want to do it. So definitely we are going to discuss your ideas in the workshop, that what basically you are into. I can do it, Abdayali. Then, okay. So keeping in mind, most of the students are in this stage like they want to do it. So definitely the institution is here to help you out in making it doing that. Then the particular business should have a keen foresightedness. Now what do you mean by the keen foresightedness? पेंडेमिक है, आज है कल थोड़ी रहेगा. सैनिटाइजर है, आज बिक रहे हैं कल थोड़ी रहेंगे. मास्क आज है कल थोड़ी रहेगा. There comes the sign of keen far-sightedness. कभी भी कोई भी अगर आप आइडिया पे काम कर रहे हो तो आपको पहले से ही लॉन्ग टेन्योर के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर आइडिया में सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में. ऐसा तो नहीं कि कोई और आपका मार्केट कैप्चर कर लेगा. कंपटीशन में ऐसा तो नहीं कि आप पीछे रह जाओगे. दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू R&D first before implementing your idea into a market. So पहले आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली सोचनी पड़ेगी कि ऐसा तो नहीं कि 2-3 महीने बाद चलने के बाद ठप पड़ जाए. तो these are the important attributes which an entrepreneur should have. Then come a most important thing, which is the creative thinking skill. What a creative thinking skill means to you? क्या चीज़ें हो सकती है भाई creative thinking skill में? Anybody, just write it on the chat box and then we will discuss some interesting examples coming across in the creative thinking skill. Let me remind you, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन पहले मुझे ये जानना है कि भाई आप लोगों की दृष्टि में क्रिएटिव थिंकिंग स्किल मीन्स व्हाट? हाउ यू गाइज आर क्रिएटिव? आई रियली नीड टू थिंक लाइक दैट. Okay, Kartikeya has replied, introducing novel things out of existing things, that is creative to him. Abdayali ke according, different level to do something, ability to do something in a new way, that is creative. Okay. What are others think? Making things simple to do what is needed. Okay. So I am coming across, and there is a disclaimer for this particular slide that I am not at all supporting any of the political party. This is just a set of examples that I am going to raise. So the first example has came in the year like 2013-2014, जब वहाँ उस particular tenure में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार से सब लोग बोर हो चुके थे, तो उसके बाद सब लोगों की नज़र थी कि कुछ नया देखने को मिले. तो फिर हमारी टीवी पे अचानक से एक नया पोस्टर आता है विच इज बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार से. ऐसे याद हुआ ये स्लोगन कि उसके बाद सबसे पहले जो इलेक्शंस रिलीज हुए और इलेक्शन जो जीता जिन्होंने, दैट इज द भाजपा. अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी को भी आप पूछ लो, ये बहुत अच्छी तरह से याद होगा. इवन अगले इलेक्शंस में विपक्ष ने भी सबसे ज़्यादा अगर किसी सेंटेंस को यूज़ किया तो वो इसी को यूज़ किया कि अच्छे दिन कहाँ आए, अच्छे दिन कैसे आए, बट द मेन मोटो इज़ कंप्लीटेड. स्लोगन सबको याद हो चुका था और उसी को आगे पब्लिसाइज किया उन्होंने, अननोइंगली और नोइंगली. देन फिर एक बार मोदी सरकार, again the same thing. Again a disclaimer, I am again and again saying that I don't support any of the political party. These are just the set of examples which I want to give you under creative thinking skills, that you need to make yourself like by the slogans, by the advertisement of your product, you need people to think about your product. That is the basic meaning of the creative thinking skill. Like अभी मैं एक ब्यूटी सोप का आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाने वाली हूँ. लाइक मैं अभी सिंपल सिर्फ उसका पिक्चर दिखाने वाली हूँ. आई गेस सबके दिमाग में वो गाना बजना चालू हो जाएगा, निर्मा ब्यूटी सोप. अगर किसी ने जाकिर खान का शो देखा है भाई रिसेंट वाला, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है.
कि तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां। जाकिर खान ने बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज किया है कि सेम जो आपका है निरमा ब्यूटी सोप, it is an extinction, it is a distinguished from the other beauty soaps at that particular tenure. उसी में अगर निरमा कंपनी के ही अगर दूसरे प्रोडक्ट की मैं अगर बात करूं तो जो हमारे करसन भाई पटेल हैं उन्होंने उनका एक प्रोडक्ट था विच इज़ द वॉशिंग पाउडर निरमा। अगर उनकी स्टोरी की मैं अगर बात करूं तो पहले जब तक ये एक ब्रांड नहीं इस्टेब्लिश हुआ था तब तक क्या हो रहा था, उनसे पैसे लेकर के लाइक जो उनका प्रोडक्ट था निरमा वॉशिंग पाउडर वो हर कोई ले रहा था, उनको कोई पैसे नहीं दे रहा था। क्यों? आके दे देते हैं, अभी उधारी में दे दीजिए। This was the thing he was facing and as a result he was collapsing in his business. Then he started the advertisement जिसमें उनकी जो बेटी है उसी के रिमेम्बरेंस में उन्होंने वो पर्टिकुलर एक टेम्पलेट बनाया, दैट इज अगेन अ क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। और उसके बाद उन्होंने उसको एडवर्टाइजमेंट दिया लाइक वॉशिंग पाउडर निरमा। आई अगेन से कि इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबको याद ही होगा। So that is the best example which has been quoted under the creative thinking skills. I think अब सबको clear हो चुका होगा कि भाई creative thinking skill क्या होती है। Please write it on a chat box if you are going to have any doubt. Okay. So then coming to the next concept which is the critical thinking आपका क्या है बेसिकली लाइक जो अभी हमने डिस्कस किया था तो दैट वाज द क्रिएटिव थिंकिंग। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग तो भाई चलिए आपको अब समझ आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग क्या मतलब हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, सॉरी क्रिटिकल थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है? प्लीज राइट इट ऑन अ चैट बॉक्स। Why the critical thinking is important? Thinking in the pressure conditions, okay. Micro planning with a foresightedness, okay. What about others? What they think about the critical thinking skills? Do you guess you have that critical thinking skill in yourself? Because most of you have replied that they want to do something with their idea. So you are the future entrepreneurs in that particular case. So are you having that skill? Are you have that critical thinking skill in yourself? Something very deeply understood, okay. Okay. क्रिएटिव थिंकिंग इन क्रिटिकल सिचुएशन, ओ माय गॉड, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग भी आ गई, क्रिटिकल सिचुएशन भी आ गई। दैट इज द बेस्ट आंसर आई मस्ट से। बट द क्रिटिकल थिंकिंग इन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट ओके आई हैव एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस, मेरे को पता है मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, मेरे को पता है मेरा कॉम्पिटिटर उस चीज़ में मेरे बिजनेस को ग्रैब कर रहा है। अब उस केस में मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो आए हाय रोना चालू कर दूँ कि हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, और या तो मैं उस चीज़ के ऊपर सोचूं कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूंगी, मैं इसे मैनेज कैसे करूंगी, इस क्राइसिस टाइम पे मेरा क्या एटीट्यूड होगा, मैं किस पर्टिकुलर आइडिया पे वर्क करके क्या सिचुएशन को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को सर्वाइव करा सकती हूँ। दैट स्किल सेट्स आर द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिसमें आपका आता है द बेस्ट एग्जाम्पल इज यस बैंक। यस बैंक की अगर बात करें तो साल 2014 की मैं अगर बात करूं तो उनकी बैंक में जो डोनर्स थे, तो डोनर के जो अमाउंट था लाइक जो आपने लोन लिया है बैंक से, वो अगर जो लोन लिया है अगर उसकी अमाउंट की मैं बात करूं तो दैट वाज द 55 करोड़ समथिंग अमाउंट। और उसके बाद जिन्होंने डिपॉजिट किया है अगर उस अमाउंट की मैं बात करूं तो दैट वाज 76,000 समथिंग करोड़। तो अल्टीमेटली बैंक को फायदा हुआ 20 करोड़ समथिंग का, तो वो डायरेक्टली मेरा मुनाफा था। अगर मैं साल 2016 की बात करूं, साल 2017 की बात करूं, तो अब यस बैंक के पास जो डिपॉजिट था वो डिपॉजिट उतना नहीं था जितना वो लोन ऑलरेडी दे चुका था, लाइक 2.13 ट्रिलियन करोड़ ऑलरेडी वो दे चुका था एज अ लोन, और उसके पास जो अमाउंट था दैट वाज 2 करोड़ इन द डिपॉजिट।
तो अब ये पर्टिकुलर डिफरेंस जो था ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसको मेकअप कर पाना उस पर्टिकुलर बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर बात करें तो काफ़ी सारे जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने अपना अपना पैसा विड्रॉ करना चालू कर दिया था कि अब ये बैंक में ही रहेगा। लेकिन आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट बैंक जिसके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो दिस इज़ नोन एज द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। आप अपने मार्केट में सर्वाइव कैसे कर रहे हो। तो इसके जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन थे मिस्टर कपूर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी कंपनीज के जो मेन आपके लीडिंग एंटरप्राइजिंग इंस्टीट्यूशंस थे, लीडिंग एंटरप्राइजेस थे, वो उन कंपनीज के पास गए, उनके साथ डील साइन किया, उनके साथ अपने फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया, उनको बोला आप मेरे बैंक में आकर डिपॉजिट कीजिए। अगेन दैट पर्टिकुलर बैंक इज सर्वाइविंग। सो दैट पर्टिकुलर थिंकिंग, अगर उस समय उन्होंने वो नहीं किया होता तो आज ये बैंक नहीं होता। That is particular the critical thinking skill. Now it depends on an entrepreneur that या तो आप यस बैंक को फॉलो कीजिए और या तो फिर आप फॉलो कीजिए किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक को विच इज़ द मलाया। तो अगर इनकी पर्टिकुलरली हम बात करें तो इनके ऊपर क्या था, बहुत अच्छे थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, बिजनेस मैन थे और इन्होंने अपना किंगफिशर एयरलाइंस का खोल रखा था। आफ्टर दैट क्या हुआ, सडनली 2013 में इन्होंने 15 महीने की सैलरी जो है वो नहीं दी अपने एम्प्लॉयज़ को। फिर मीडिया में आया बाद में कि आगे जो इनके पास लोन्स थे वो लोन्स कुछ $3 बिलियन जो थे वो उनके पास लोन ऑलरेडी हो चुका था। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम इन्हें पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम देते हैं, 2-3 साल बाद तक ये रिटर्न कर देंगे बिकॉज ही वॉज अ सांसद। तो फिर आफ्टर दैट 3 साल बाद उनके पास और ज़्यादा लोन इकट्ठा हो गया, उन्होंने जमा तो तब भी नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पर्टिकुलर पर्सन देश के बाहर नहीं जा सकता, बट दैट वाज टू लेट बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया एंड वाज सर्वाइविंग इन लंडन, इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। So that is particularly meant by the critical thinking skills. That depends on you that whom particular example you need to follow. Then coming to the practical entrepreneurial skills and knowledge. Now in a theoretical workshop to let you learn about the practical skills, that is little bit unfair because in order to learn the practical entrepreneurial skills, you need to sit with an entrepreneur, you need to think like an entrepreneur, you need to do the internship under an entrepreneur, and then only you are going to acquire that practical entrepreneurial skills. So for that, let us understand by the example of the Tinku's Cafe. Again, a local example from Indore. Tinku's Cafe is very renowned. Like most of you have gone somewhere like by the part of the time. So what he has done, why this particular cafe is so known, कि इतनी सारी इसकी चेन्स आ गई, इतनी सारी इनकी फ्रेंचाइजीज आ गई विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले जो इनके रेस्टोरेंट्स थे, पहले के जो कैफ़ेज अवेलेबल थे, उनके पास जाकर सिर्फ बैठे और उनके वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए कि ओके इनका बिजनेस कितने कितने लोगों से एसोसिएटेड है, इनका वीक पॉइंट क्या है, और उन्हीं वीक पॉइंट पे काम करके उसने खुद का खड़ा किया विच इज़ द टिंकूज कैफे नाउ। उनके पास अगर हम कोल्ड कॉफ़ी की बात करें तो वो कोल्ड कॉफ़ी में आपका जो चॉकलेट सिरप है वो अलग से डाल के देते हैं। ये सारी चीज़ों को देखकर फिर बाकी ने अडॉप्ट किया, बट तब तक मार्केट ग्रैब टिंकूस कर चुका था। सो दैट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। कई बार हो सकता है आपके पास आइडिया नहीं हो, लेकिन वो बाद में आपको मिल सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एम्बियंस, कि एम्बियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बियंस से ही आइडिया आया आपका जेल कैफ़े का, कि मैं एक एम्बियंस ऐसा प्रोवाइड करूं जो बिल्कुल जेल की तरह हो, लेकिन वहाँ पे खाना बहुत अच्छा रहे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो म्यूज़िक का है वो काफ़ी अच्छा हो, आपको एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट लगे, वहाँ पर वाइब्स आपको अच्छी मिले। दैट इज़ द जेल कैफे विच स्टार्टेड इन इंदौर ओनली फ्रॉम द ईयर 2014. So this is how these businesses scale up and they are existing right now. Now talking about the pharmacy field, जो मास्टरिंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक फ्यू आर फ्रॉम मास्टर्स ईयर, कुछ जो बी फार्मा फाइनल ईयर या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट द ड्रग डिजाइनिंग। मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर कोई ड्रग आपको डिस्कवर करनी है तो उसके लिए आप ड्रग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर इज द श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने भी शुरुआत जो की थी वो ऐसे ही की थी कि उन्हें नीड लगी इस चीज़ की कि हाँ एक ड्रग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिसमें ये टूल्स होने चाहिए, एंड ही जस्ट इनकॉर्पोरेटेड ऑल सेट ऑफ टूल्स इन इट एंड नाउ ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सेम एग्जाम्पल गोज फॉर द स्काई फाइंडर।
स्काई फाइंडर का मतलब क्या है कि बेसिकली मुझे एक नया केमिकल रिएक्शन लगाना है, मुझे नहीं पता कि इस केमिकल रिएक्शन को लगाने के बाद मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर एक मैं फार्मा कंपनी हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर रिएक्शन लगानी है जिसमें मैं आर ग्रुप को सब्स्टिट्यूट को मैं चेंज करती जाऊँ, तो वो सब्स्टिट्यूशन को मैं चूज करूँ, इससे बेटर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चूज करके डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज मैं प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो सारे सब्स्टिट्यूशंस एक साथ आ जाए उस केमिकल रिएक्शन में। दीज आर द थिंग्स जिसमें अगर मैं मैनुअली कर रही हूँ तो मैन पावर ज़्यादा लगेगा, लेबोरियस काम है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सारी चीज़ों को एस्केप करने के लिए फिर आया नया सॉफ्टवेयर विच इज़ द स्काई फाइंडर। सो इस तरीके के प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सम like these are the common images जो आप रोज देखते हो, the global and the national successful entrepreneurs. Can anybody name all of them? Please write it on a chat box. Please write it on a chat box that who are these people basically. Elon Musk, okay. Mark Zuckerberg, though spelling is wrong, but we can consider that. Neha, okay. Elon Musk and Mark Zuckerberg. What about others, class? There are many. Like at least 7 तो है यहाँ पे. Azim Premji, Bill Gates, okay. Bill Gates, okay. Others, please respond. भाई रिस्पॉन्स अगर देर से आता है ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हमारी भी एनर्जी लो हो रही है. Elon Musk and Mark Zuckerberg, Bill Gates, okay. What about others? Who is this particular person? Okay, so let's discuss now one by one because I am not don't know about others. Okay, so let's discuss one by one who is this particular person. So few of the participants have recognized him well that this particular person is the Elon Musk. अब ये जो हमारे Elon Musk हैं, he is the founder of which particular organization he is the founder of? Anybody? You can write on the chat box. टेस्ला, ओके ओके टेस्ला, सभी टेस्ला लिख रहे हैं. बेटा टेस्ला के जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर हैं, प्रोडक्ट की जो डिज़ाइनिंग वाला जो काम है वो पर्टिकुलर एलॉन मस्क करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फाउंडर या ओनर की. तो अगर फाउंडर या ओनर की अगर बात करें तो ही इज़ द ओनर और द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स. स्पेस एक्स ऐसी कंपनी है जिसका पर्टिकुलरली काम है कि मार्स में जाने वाले जो सामान हैं उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करना. जब आप कॉलोनाइजेशन आप मार्स में स्टार्ट करने वाले हो, मार्स इज अ प्लैनेट, वहाँ पे आप जब कॉलोनाइजेशन आप स्टार्ट करने वाले हो, उस कॉलोनाइजेशन के लिए जो सामान आपको लेकर जाना है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो. दैट इज़ द बेसिक मोटो ऑफ द स्पेस एक्स कंपनी विच इज़ ओन्ड बाय एलॉन मस्क. अब ये जो पर्टिकुलर हमारे हैं ये टेस्ला में भी थे, इनका टेस्ला में भी जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग का काम है वो इनका था. अभी फ़िलहाल की मैं अगर बात करूं तो जो इनकी प्रेजेंट कंपनी है विच इज़ द स्पेस एक्स कंपनी, इसका आधा पैसा या शायद आधे से भी ज़्यादा पैसा नासा ने दिया है ताकि ये अपना काम एफिशिएंटली करें. नाउ इमेजिन द लेवल ऑफ नासा. क्योंकि आप अगर कोरा पे जाकर देखोगे तो कई क्वेश्चंस तो कई लोगों ने तो ये भी पूछा है कि भाई पहला जो मार्स के ऊपर सैटेलाइट ले जाने वाले हैं या पहला जो कॉलोनाइजेशन करने वाले हैं, क्या लगता है स्पेस एक्स करेगा या नासा करेगा? तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड स्पेस एक्स. सो ही इज एन एंटरप्रेन्योर
जिनका बेसिक अगर हम नॉलेज की बात करें तो वो सारा था एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का या फिर एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का, कि एक पर्टिकुलर कार है जो सोलर सिस्टम पे अगर चलती है, वहाँ से वो शुरुआत की उन्होंने टेस्ला कंपनी से, एंड नाउ ही इज़ ऑन द स्पेस सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स, और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करने के लिए फ्यूल है वो सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं. सो दिस इज पर्टिकुलर पंचनिंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मार्क जुकरबर्ग, कितने लोग जानते हैं कि भाई मार्क जुकरबर्ग का जो बेसिकली फेसबुक का आइडिया था दैट वाज टेकन फ्रॉम समबडी एल्स, मतलब ये कॉपीड था, ये उनका खुद का नहीं था. मार्क जुकरबर्ग की अगर हम बात करें तो ही वॉज स्टडिंग इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक प्रोग्राम कोडिंग की सबसे पहले. उस प्रोग्राम कोडिंग का नाम था कोर्स मैच. कोर्स मैच में बेसिकली क्या था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना सिलेक्शन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड है, और उस बेसिस पे वो अपने स्टडी ग्रुप्स बना सकते हैं. तो वो उन्होंने पहला कोडिंग किया था. उसके बाद उन्हें लगा कि मस्ती मजाक के लिए कुछ और भी किया जाए, तो ही यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल. उन्होंने फिर दूसरा जो किया दैट वाज द फेस मैच. वो फेस मैच जो था वो क्या था, बेसिकली वो फेस मैच का काम था कि हॉस्टल में रहने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने उसकी फोटोग्राफ्स ले ली थी, और वो फोटोग्राफ्स उन्होंने एक फेसबुक लाइक फॉर्मेट में उसको उन्होंने अपलोड किया. बाद में लाइक सैटरडे को उन्होंने किया, मंडे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको कम्प्लीटली बैन किया, और उस कॉलेज ने एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस पे ही बैन कर दिया कि कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं करेगा. और मार्क जुकरबर्ग ने बाद में माफ़ी भी मांगी कि हाँ चलिए हम पब्लिकली हम किसी और की फोटोग्राफ को यूज़ नहीं करेंगे. फिर उनके सीनियर्स ने उनको बोला कि हम एक हार्वर्ड्स कम्युनिकेशन करके harvardscommunication.com करके एक नया हम अपने कॉलेज में चालू करते हैं, जिसके थ्रू लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, अ सोशल मीडिया इन द हार्वर्ड्स कॉलेज. उन्होंने बोला ठीक है, आइडिया उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने उस पर काम किया, एंड नाउ द फेसबुक इज हियर. So that's how the idea of the Facebook has came from the Mark Zuckerberg. Then is the example of the Paytm founder. इन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विजय शेखर शर्मा, इन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बिल गेट्स, आई थिंक बिल गेट्स को भाई कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं इन्हें. आफ्टर दैट इन्फोसिस के मालिक का नाम, इन्फोसिस के मालिक का नाम जो अगर किसी को पता हो तो उन्हें ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन कौन है. बहुत अच्छी हिंट दे दी है मैंने, और अजीत प्रेम जी को सबने बता दिया था. ये जो पर्टिकुलर पर्सन है संजय बंसल, ही इज़ द ओनर ऑफ डैश और एंटरप्राइज, जो कि आप मोस्टली यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी इसके काफ़ी आते हैं. कैन एनीबडी टेल? प्लीज राइट इट ऑन अ चैट बॉक्स. नारायण मूर्ति नहीं बेटा, नारायण मूर्ति नहीं है. नारायण मूर्ति पहले थे, अभी हम दूसरे पार्टनर की बात कर रहे हैं, लाइक देवर इन अ पार्टनरशिप. तो ये दूसरे पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ. दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नंदन नीलेकिरी, ये आपके अजीत प्रेम जी हैं. एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज संजय बंसल, ही इज द चेयरमैन ऑफ फ्लिपकार्ट. तो these are the global and the national successful entrepreneurs. local stories हम already like discuss कर चुके हैं. Now coming to the part entrepreneurship as an alternate career. इसकी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो आप में से लाइक कई लोगों ने लिखा था कि आप कौन सी स्टेप पे हैं, तो कई लोगों ने बोला कि आई वांट टू डू. तो व्हाट आर योर आइडियाज, हाउ व्हाई यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाई नॉट जॉब? पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, फिर we will elaborate this further. Please write it on a chat box. Independence, okay, that's right. Be own boss, that's right. I don't like to work under someone, that is right. Mahi Jaiswal, that was right answer. I think job we
कुछ सेंटेंस बेटा मैं समझ नहीं पाया. आई थिंक जॉब वी नॉट हैविंग, the job you are having is not making you is not having the decision power. Want to work in own way. Okay, so if I say that your mother is the best entrepreneur in whatsoever, like local people you know, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा तो भाई अपन किसी के ज़्यादा क्लोज रहते नहीं हैं. तो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो मम्मी है वो सबसे बड़ी एंटरप्रेनर है, तो हाउ मेनी ऑफ यू इज गोइंग टू एग्री विथ मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू एग्री विथ मी कि हाँ सही बोल रहे हैं, मम्मी जो है हमारी वो तो एंटरप्रेनर है. How many of you are entrepreneur? Okay, Kartikeya says no, Sumedha says yes, Abhishek says yes. Okay, so now let's discuss how. Like भाई कई लोग बोल रहे होंगे यार हमारी मम्मी तो हाउस वाइफ है, इन्होंने एंटरप्रेनर बना दिया, ऐसे कैसे बना दिया, एंटरप्रेनर क्यों कह रहे हैं? तो बेटा सिंपल सी बात है, जब आपको भूख लगती है तो सबसे पहले आपको होटल के जैसा, बिल्कुल होटल से इवन अच्छा खाना प्रोवाइड करने का काम आपकी मम्मी करती है. एट वॉट रेट? लाइक फॉर एग्जाम्पल आलू 25 रुपये किलो. लाइक मुझे अभी का रेट नहीं पता है, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल कि आलू है आपका, अगर आलू मार्केट में अवेलेबल है 25 रुपये किलो, तो जब वो लेने जाएंगी तो वो 25 में लेके नहीं आएंगी कभी भी. वो अगर लेने जा रही हैं तो वो या तो बोलेंगी 22 में, या तो 23 में, या तो 20 में. दैट वॉट एन एग्जैक्ट एंटरप्रेनर डू. आपका कोई बिजनेस है, आपको उसमें से पहले तो प्रॉफिट निकालना है. अगर आपका कोई आइडिया है लेकिन आप उससे प्रॉफिट निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो दैट इज नॉट एन एंटरप्रेनर. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग, आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद सबसे पहले मलहम पट्टी करने का, सारा करने का काम, आपका ध्यान रखने का काम, लाइक अ नर्स डज योर मॉम. तो आपके अगर फादर अगर वर्किंग है, उनकी सैलरी है XYZ अमाउंट, उसकी सैलरी का कितना हिस्सा आपकी मम्मी बचा रही है? दैट इज व्हाट एन एंटरप्रेनर डज. सो एंटरप्रेनरशिप एज एन अल्टरनेटिव करियर, इसमें ज़्यादा अच्छे से इलैबोरेटिव वे में एक्सप्लेन करने के लिए नाउ आई एम इनवाइटिंग जयंत सर फॉर द सेम. अगर अभी तक के सेशन में अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन रेज इट. एंड जस्ट अ सजेशन दैट जो भी अभी तक हमने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स या ट्रेड्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहो, क्योंकि अभी आप में से कई लोगों ने बोला था एट व्हाट स्टेप यू वांट टू डू इट, यू आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज, तो ये पर्टिकुलर साइट ज़रूर विजिट कीजिएगा विच आई हैड मेंशन इन द स्लाइड. इस साइट को विजिट करके आप पूरा टेस्ट दीजिएगा. ऑल्दो इट इज़ हैविंग अ 50 क्वेश्चंस, थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें सिर्फ क्लिक करना है. एक क्वेश्चन होगा, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं उस स्टेटमेंट से, यू जस्ट नीड टू मेंशन दैट. उसके बेसिस पे वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं एंड क्या आप आगे जाके एंटरप्रेनर बन सकते हैं या नहीं. नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट you can come across. After that we will invite Jayan sir for the same. Tanya Mercy free. Okay, like they are saying about the mother as a entrepreneur. Okay, so now I forward the things to Jayan sir. Jayan sir, please. Hello. Hello. If I am audible, please, write yes in the chat box. If I am audible, write yes in the chat box. Chalo, perfectly fine. First of all, Shweta ma'am, thank you so much for, provoking them on entrepreneurship and innovation as a career opportunity. Shweta ma'am had explained wonderfully. श्वेता मैम ने एक मदर का एग्जांपल लिया तो शायद सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं, सो आई विल एलैबोरेट दैट एग्जांपल. यार माँ से बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं होता, श्वेता मैम का एक कहना है. सो लेट अस अज्यूम हाउ. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात का बचा हुआ रोटी सुबह भी खाते हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर वन ऑफ देम, क्योंकि मैं तो हूं.
रात का बचा हुआ रोटी मैं सुबह भी खाता हूँ, यस समटाइम्स, यस ग्रेट 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 ग्रेट। सो बॉस, माँ क्या करती है, रात में अगर रोटी बच जाती है, सुबह उसके टुकड़े टुकड़े करके वो रोटी का खूसरा बना के हमको दे देती है और हमको सर्व करती है और फिर पूछती है कि बेटा कैसा लगा। Isn't that amazing? Isn't that amazing? So that is the quality of an entrepreneur. Start with your own means. आपके पास जो भी है उससे चालू करो। And our mother does that perfectly well यार। मतलब मेरे को वो रोटी का खुसरा तो बहुत पसंद आता है। Yes कार्तिकेय जोशी, it's an innovation from our mother's end. नोटबंदी हुई थी भैया आज से कुछ सालों पहले और पता लगा था कि कुबेर का धन तो हमारी माताओं ने छुपा के रखा है। यस और नो? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच नेहा, हमेशा हमारी माताओं ने कुबेर का धन छुपा के रखा था। एक एंटरप्रेन्योर अपना जो मनी है उसको एक फिक्स अमाउंट में सेव करके चलता है। You do not know when the crisis will come, and during the crisis एक एंटरप्रेन्योर किसी के पास हाथ फैला उसके पहले वो खुद से हाथ फैलाता है। So this is no about my mother. Okay, राहुल मीना, आपकी मदर ने कोई खजाना नहीं छुपाया था, but maximum and majority of the mothers had, you know, kept some amount in the homes for, you know, the crisis which may occur in the future. This is the example of मदर। सो सबकी माँ ऐसी होती है। श्वेता मैम ने बहुत परफेक्टली बोला यार, माँ जब भी सब्जी या फल खरीदने जाती है वो एग्जैक्टली उस रेट पे नहीं खरीद के आती जिस रेट पे वो बेच रहा होता है सब्जी वाला या फल वाला। हमारी माता हमेशा उसके साथ बार्गेनिंग करती है कि नहीं भैया थोड़ा कम कर दो। जैसे श्वेता मैम ने बोला आलू 25 रुपए किलो से 22 में ले आती है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको रॉ मटेरियल जरूर लगेगा, और रॉ मटेरियल की परचेसिंग इट्स अ स्किल। क्योंकि भैया सामने वाले ने बोला हो कि 25 रुपीज केजी और आपने खरीद लिया, परफेक्टली फाइन, उसको तो आपने फायदा पहुंचा दिया, आपका क्या हुआ? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज अ करियर अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग लिंक कैसे करते हैं। सो द स्टोरी गोज लाइक, एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें मदर, फादर और 2 बच्चे होते हैं, भाई बहन। बहन छोटी सी होती है, महज 4 से 5 साल की, बहुत क्यूट सी बच्ची। भाई 8 से 10 साल के बीच का होता है। एक बार भाई को बहुत ज्यादा सर दर्द होता है तो उसके माता पिता उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई को ब्रेन हैमरेज है। अब भैया ब्रेन हैमरेज है तो खर्चा भी बहुत आएगा। यस और नो, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। अगर ब्रेन हैमरेज जैसी कोई बीमारी है तो क्या होगा? खर्चा बहुत आएगा या नहीं आएगा? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। परफेक्टली फाइन, यस आएगा आएगा आएगा। तो एक बार वो छोटी सी बच्ची अपने माता पिता को बात करते हुए सुन लेती है और उसकी माता जी रो रही होती है। वो रो रही होती है क्योंकि उसका बेटा कैसे बचेगा, उसकी माँ को चिंता रहती है। और उसका फादर कहता है मेरे पास जितना भी था मैंने सब लगा दिया, लेकिन इससे ज्यादा अब मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो छोटी सी बच्ची उनके कन्वर्सेशन सुनती है तो उसके फादर एक वर्ड बोलते हैं, तो अब भैया इसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम इंडियंस चमत्कारों में विश्वास करते हैं। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स इफ यस, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ इंडियंस बिलीव इन द मैजिक ईदर बाय गॉड और बाय सम बाबा जीस, क्योंकि हम लोग हैं ऐसे, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर संस्कृति, मिरेकल्स, एग्जैक्टली। सो वो बच्ची सुन रही होती है, 4-5 साल की बच्ची अपना गुल्लक उठाती है, पिगी बैंक उठाती है और वो पास के मेडिकल स्टोर पे जाती है। क्योंकि भैया बीमार है, ये पता चला हॉस्पिटल में, भैया आ नहीं रहा तो कुछ ना कुछ तो बीमारी हुई होगी ना। तो बीमारी में हम क्या खाते हैं? मेडिसिन खाते हैं। वो अपना गुल्लक लेके गई उस मेडिकल स्टोर में और उस मेडिकल स्टोर में अपना प्रेजेंस दिखाने लगी। छोटी सी बच्ची थी तो वो मेडिकल स्टोर के काउंटर तक शायद नहीं पहुंच पा रही थी। मेडिकल स्टोर वाले भैया उसको सुन नहीं पा रहे थे और भी लोग खड़े थे, तो उसने अपना गुल्लक मेडिकल स्टोर वाले के काउंटर पे पटक दिया। जब पटका तो मेडिकल स्टोर वाले को पता चला कि अच्छा ये छोटी बच्ची भी खड़ी है। तो वो बच्ची से पूछता है बेटा क्या चाहिए? तो बच्ची बोलती है भैया चमत्कार चाहिए। सी द इनोसेंस ऑफ दैट क्यूट गर्ल। वो बोलती है भैया चमत्कार चाहिए। अब भैया आप लोग मुझे बताइए क्या मेडिकल स्टोर पे चमत्कार मिलता है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या मेडिकल स्टोर पे चमत्कार मिलता है? नो 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 नो। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी मैं बोलता हूँ यस मिलता है, क्योंकि वी इंडियंस बिलीव इन मिरेकल्स ऑफ गॉड। गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो वहां पे एक सज्जन खड़े होते हैं और वो उस बच्ची से पूछते हैं अच्छा बेटा आपको चमत्कार चाहिए, तो चमत्कार क्यों चाहिए?
तो वो बच्ची पूरी स्टोरी इलैबोरेट करती है। फिर वो सज्जन जी पूछते हैं आपके पास बेटा कितने रुपए हैं, तो वो बोलती है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, और अपना गुल्लक फोड़ देती है और उसमें से 19 रुपए निकलते हैं। वो 19 रुपए लेके वो सज्जन बोलते हैं बेटा इतने में तो तुमको चमत्कार मिल जाएगा, बिकॉज ही वॉज अ न्यूरोसर्जन, और उसने न्यूरो सर्जरी की उस बच्चे की, एंड टुडे दे ऑल फोर आर लिविंग हैप्पीली, दे ऑल फोर आर लिविंग हैप्पीली। Isn't it a miracle? जादू नहीं हुआ, चमत्कार नहीं मिला मेडिकल स्टोर पे? टाइप yes or no in the chat box. मिला। So एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहां से ही मिलता है कि एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिस्ट होता है, उसको अपॉर्चुनिटी जहां मिल जाए वो ले लेता है। मैं यहाँ पे पैसों को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो डॉक्टर था, वो न्यूरोसर्जन था, और हम लोग भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो डॉक्टर्स को मानते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है रिलेटेड टू मेडिकल, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पूरा भरोसा डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि ये भैया हमको बचा लेगा। सो वो बच्ची को नहीं मालूम था वो डॉक्टर है, लेकिन उसको तो चमत्कार चाहिए था और वो चमत्कार मिल गया। एंटरप्रेन्योरशिप एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, श्वेता मैम ने बताया साथ। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिस्ट। अब मैं बात कर रहा था एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। तो वो बच्ची को चमत्कार मिल गया, वो डॉक्टर को एक पेशेंट मिला अच्छा काम करने के लिए, उसने 19 रुपए में न्यूरो सर्जरी की, जो आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि आज की दुनिया में 19 रुपए में न्यूरो सर्जरी पॉसिबल नहीं है। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। पॉसिबल नहीं है मैं कह रहा हूं, टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव हियर इज, सेकेंड एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव हियर इज, बात चल रही थी कि यार इनोवेशन लाना है, इनोवेशन लाना है हमारी कंट्री में। बात चल रही थी कि क्या करे क्या करे। आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2004, 5, 6, 7, 8। बात चल रही थी कि यार क्या इनोवेशन ऐसा आ सकता है, बात चल रही थी कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में एक परिवार है जिनका नाम बहुत बड़ा है। नॉट पॉसिबल नहीं बॉस, पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इनोवेशन लाना पॉसिबल है। सो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा परिवार है जिन्हें हम अंबानी परिवार नाम से जानते हैं, जिनके आज दो सपूत है। ये अंबानी परिवार जिनके आज दो सपूत है, मुकेश और अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के दो सपूत। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, लाइक ही वाज द फाउंडर मेंबर। जब उनके डेथ के बाद बंटवारा हुआ तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो थी, जिसको आप लोग स्मार्ट के नाम से भी जानते थे, स्मार्ट नाम से सिम बिकती थी, फिर उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस टेलीकॉम नाम से बेचा गया। रिम करके सिम आती थी, रिलायंस इंडिया मोबाइल, वो हुआ। तो वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री गई अनिल अंबानी के पास। मुकेश अंबानी को यह अच्छा नहीं लगा। उस समय उसने दिमाग में एक बात ला ली थी कि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में वो इनोवेशन के साथ डिसरप्शन ला देगा, वो सबको हिला डालेगा। एंड द रिजल्ट और द प्रोडक्ट इज जियो। जियो कब स्टार्ट हुआ था? कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है मुझे? जियो 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 2016, परफेक्ट। और कोई? हो 2016 मतलब सबको मालूम है। सो आप में से कितने लोग मेरे जैसे हैं जो बस स्टॉप, स्पेसिफिकली आई बस स्टॉप के पास बैठे रहते थे उस वाईफाई को लेने के लिए जो 1 GB पर डे फ्री देता था एज अ स्टूडेंट? इंदौर में जितने लोग रहते हैं, मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, सारे आए बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे इंस्टॉल की 1 GB डेटा फ्री। अरे ओ माय गॉड, इंडिया जैसी कंट्री में जहां हर चीज हम लोगों को फ्री में लेने की आदत है, हम लोग वाईफाई से नेट भी फ्री में चलाते थे। Isn't it amazing? So that was the innovation by मुकेश अंबानी। उसने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद से, और उसको समझ में आया कि ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत अच्छी होती है जो अभी इंडिया में नहीं है। दैट वाज द रीजन आइडिया और वोडाफोन की मोनोपोली चलती थी। 2G, हमारे यहाँ 2G स्पेक्ट्रम भी हुआ था, 2G घोटाला, अगर आप लोगों को याद हो तो। सो यू नो मुकेश अंबानी ने इस चीज का फायदा उठाया एंड जियो लॉन्च हुआ। जियो ने स्पेशली स्टार्टिंग में फ्री में दिया, फ्री में सिम बांटी, इवन कॉलेजेस में जाके यार बच्चों को सिम बांटी है फ्री में जियो ने। एंड दैट वाज हाउ एन इनोवेशन लेड टू अ प्रोडक्ट। आप में से मैक्सिमम लोग जियो चलाते होंगे क्योंकि आज भी सबसे सस्ता और अच्छा नेटवर्क दे रहा है। उसने BSNL को पछाड़ दिया। BSNL भारत की कंपनी है, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी। यस और नो? यस और नो? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स।
Yes, it's true. Perfectly fine. Yeah. Good, 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 good. So this is how an innovation can convert your career into a miracle. Boss, यहाँ पे भी चमत्कार होता है. अगर मैं एस्टिमेशन की बात करूं तो लोगों ने कहा था कि मुकेश अंबानी यहाँ पे फोरहेड पे CHUTIYA लिखाकर आया है. लेकिन मुकेश अंबानी बहुत दूर की सोचता था. वो ये बोलता था कि आगे जाके अगर मैंने 200 रुपए भी लेना चालू किया लोगों से तो लोग मेरे को हंस के 200 रुपए देंगे. Yes or no? Are you one of them or not? Are you one of them or not? Type yes or no in the chat box. मुकेश अंबानी ने ये एस्टिमेशन लगाया था कि अगर मेरे पास 50 करोड़ उपभोक्ता भी होंगे तो 200 रुपए के हिसाब से मेरे पास एक साल में कितना आएगा? 50 into 200, 1000 करोड़ रुपए एक साल का. ये तो मैं मिनिमम अमाउंट ले रहा हूं 200. मिनिमम उपभोक्ता बोल रहा हूं 50 करोड़ 135 करोड़ की जनता में से. इतना तो मुकेश अंबानी ने सोचा होगा ना. 50 करोड़ तो आए होंगे ना. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. उन 50 करोड़ से वो 1000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान बना के बैठा हुआ था और वही हुआ. अब मुकेश अंबानी 5G की दौड़ में लगा हुआ है. मुकेश अंबानी अब 5G की दौड़ में लगा हुआ है. Sooner we will be having 5G in India. So that is innovation, and that innovation is converting into a great career with the help of entrepreneurial skills. And Mukesh Ambani is regarded as the innovator and entrepreneur of India. मैं बात करूं रितेश अग्रवाल साहब की. बहुत सारे कपल्स ऐसे थे जिनको स्पेस नहीं मिलता था. यार कहाँ जाए, क्या करें. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको होटल सस्ते दाम पे नहीं मिलते थे. बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनको होटल मिल भी जाते थे तो अच्छे नहीं होते थे. रितेश अग्रवाल साहब को भी ये प्रॉब्लम एक बार, यस ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल साहब को भी ये प्रॉब्लम एक बार आई. वो आगरा गए हुए थे घूमने के लिए और दैट वाज हाउ ओयो रूम्स वाज फॉर्म्ड. द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, जो अब सिर्फ एशिया में बिजनेस नहीं करता, यूरोपियन कंट्रीज में भी बिजनेस करता है. दैट वाज हाउ. Yes, Ambani is bringing up 5G. Yes, 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 yes. You are very absolutely correct, Rahul Meena. Yes, 26 साल का था लेकिन वो 26 के पहले ही ओयो रूम स्टार्ट कर चुका था. Great to hear this. So that is how entrepreneurship and innovation is converting your career. That is how you can be the entrepreneur. So Shweta ma'am ने एक टेस्ट लिंक के बारे में कहा था. So I'll request Shweta ma'am if we can put that link in the chat box and we can end the session क्योंकि I believe time भी हो गया है. जी मैम. So I'm typing the link so that you people can go through the test, and if you have any query regarding any aspect of entrepreneurship and innovation, you can write it in the chat box and I'll answer. If you have any query कि यार सर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है लेकिन बनना कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे में वो बर्निंग डिजायर है, वो आग लगी हुई है, तो क्या करने का है सर, ये भी क्वेश्चन है. आई एड्रेस दैट. कोई बोलता है कि नहीं यार सर मेरे को तो ना इनोवेटर बनना है, आई एड्रेस दैट. ओके, वेयर फंडिंग कम फ्रॉम? गुड क्वेश्चन अब्दियाली शकीर. सो बेसिकली फंडिंग बेटा इजीली नहीं मिलती है. यू नीड टू वर्क अपॉन एन आइडिया एंड यू नीड टू प्रूव दैट योर आइडिया इज वर्थ. So there are certain investors called angel investors. Angel यानी परिया. Yes, they are परी वाले investors जो किसी भी startup में पैसा लगाते हैं. Let me give you an example of a startup from Indore, क्योंकि हम लोग इंदौर को belong करते हैं. There is one startup called उपवास. It is again a restaurant. So उसने क्या किया, आप लोगों ने क्रीम रोल बचपन में बहुत खाया होगा, वो भी उसने उपवास वाला बना दिया सिंगाड़े के आटे का, क्योंकि सिंगाड़े का आटा is regarded as one of the eatables in fast. अब बहुत सारे फंडिंग गैलोर्स होते हैं, फंडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फंडिंग चैंपियनशिप्स होती है, एंटरप्रेन्योरशिप समिट्स होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव्स होते हैं. उपवास अपना आइडिया लेके इन समिट्स, कॉन्क्लेव्स और फंडिंग गैलोर्स में गया. जिस भी इन्वेस्टर को उपवास का आइडिया पसंद आया उसने उपवास को इन्वेस्टमेंट दिया. सो दिस इज हाउ फंडिंग इज रेज्ड. लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज यू शुड बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप मतलब जितना आपके पास है पहले उतना लगा के स्टार्ट करो. जरूरी नहीं आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आपको फंडिंग मिलेगी. एनी अदर क्वेश्चन? बाय द टाइम आई हैव टाइप्ड द टेस्ट लिंक इन द चैट बॉक्स. प्लीज कॉपी इट फ्रॉम द चैट बॉक्स, save it for your perusal,
एज श्वेता मैम टोल्ड यू कि दिस इज 50-minute टेस्ट, और क्योंकि ये वर्कशॉप है हम लोग ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं तो हमको टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ेगा. अगर ऑफलाइन मोड होता तो इट वुड हैव बीन इजी टू गिव यू मोर नॉलेज. आई होप शकीर आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट हाउ फंडिंग like come from. Shakir, type yes or no in the chat box. Perfectly fine. Any other question? Any other question? कि सर मेरे पास आइडिया है, मेरे को आगे क्या करने का है. सर मेरे पास स्पेस है, आइडिया है, प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट बेचूं कैसे, मैं मार्केट में कैसे लेके आऊं. आई विल एड्रेस दैट. Any other question related to pharmacy चल जाएगा, related to any world of startup चल जाएगा. Okay, so no questions. Okay, I hope you people have seen the test link. Sir, e-pharmacy, perfectly fine. Neha Gode, what do you want to ask in e-pharmacy, like how e-pharmacy works? Do you want to ask this? Okay, so basically Shweta ma'am ने कुछ softwares के बारे में कहा था, that is used for okay, how can I start? Perfectly fine Neha. Okay, so first of all, if you want to start e-pharmacy like PharmEasy, उसमें क्या करना होगा, you need to connect with the local vendors. Say for example, if you belong to Indore, so you need to connect to local vendors from Dawa Bazaar, क्योंकि Dawa Bazaar is one such place in Indore जहाँ पे सारी companies की दवाइयाँ मिलती है. Right or wrong? Type right or wrong in the chat box so that I may move further. Okay, right sir. So दवा बाजार में आपको जाके कनेक्शन बनाना होगा. अब दवा बाजार आपसे कनेक्ट क्यों करेगा, सबसे पहली बात ये आती है. सो यू नीड टू बिलोंग टू अ मेडिकल स्टोर जो ये काम कर सके, क्योंकि दवा बाजार मेडिकल स्टोर वालों को तो एड्रेस करेगा लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल एड्रेस नहीं करेगा. या तो फिर आप सॉफ्टवेयर पे वर्क करो जो PharmEasy ने किया. What PharmEasy did, I'll tell you and then I'll address the question of Neha. PharmEasy is a startup made by a computer science engineering graduate, और उसके साथ उसका एक फार्मेसी का फ्रेंड मिला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन में अगर डील करना है आपको तो आपको एक फार्मासिस्ट चाहिए. विदाउट फार्मासिस्ट यू कैन नॉट डील इनटू द मेडिसिनल इंडस्ट्री. सो उसने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया. अब उसने क्या किया, उसने ये देखा कि यार बहुत सारे लोगों को अब ऑनलाइन की आदत पड़ गई है, क्योंकि बिग बास्केट जैसा जायंट आपको घरों में ग्रेन्स दे रहा है. बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं, आपका किराना वाला खुद अब आपको घर पे सामान देने आ जाता है. कोरोना में इन्हीं लोगों के सहारे हमारा घर चला है जब लॉकडाउन था. सो PharmEasy को ये कंसेप्ट पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि बिग बास्केट वगैरह पहले ही आ गया था. और बिग बाजार जब स्टार्ट हुआ था तो बिग बाजार ने भी ये मोनोपोली स्टार्ट की थी कि इतने के ऑर्डर पे वो फ्री होम डिलीवरी दे देगा. सो PharmEasy ने भी यही किया. अब आपको मेडिसिन मंगवाना है तो उसने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया कि ओके इतने का मिनिमम मेडिसिन अगर कोई बुलवाता है तो PharmEasy विल सेंड द मेडिसिन टू द पर्टिकुलर कस्टमर. ये चीज आपको करनी होगी. अब आपके पास या तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपको सारी चीजें लिंक करके दे, आपके पास राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो वो सॉफ्टवेयर को प्रमोट करे. क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ PharmEasy के फाउंडर की, ही वाज एन IITian, तो IIT के कैंपस ने, IIT के इंस्टीट्यूट ने उसको सपोर्ट किया है. दैट इज द रीजन PharmEasy को थोड़ा सा ईज रही बिजनेस में उतारने के लिए. बट फॉर यू पीपल इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग अभी उस स्टेज पे हो जब आपको आइडिया स्टार्ट करना है. सो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी जस्ट गो फॉर द सॉफ्टवेयर. If you are not well versed with the technology, just have a tie up with a medical store who is doing a great business, and उसके नाम पे उसके साथ नेटवर्किंग करके दवा बाजार से प्रोडक्ट उठाना और e-pharmacy स्टार्ट करना. I hope Neha I am able to solve your query. Any other question? Any other question? Any other question? Mahi Jaiswal, sir, I am not able to get that vision, or I can say I am not able to choose a path. I really want to start something, but I am not getting into it. I don't know what to start, where to start, but I really want to start. Perfectly fine, Mahi Jaiswal. For you, okay, do I have to involve more than one store? No. You need to find one particular store which is dealing with good amount of customers. अगर उस मेडिकल स्टोर का, अगर उस रिटेल शॉपी का नाम है तो कोई भी होलसेलर दवा बाजार का आपको मेडिसिन दे देगा. अगर उसका नाम नहीं है तो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नया वेंडर कोई भी इतना इजीली ऐड नहीं करता, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस चलता है ये क्रेडिट पे चलता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर कंसेप्ट विच इज नोन एज क्रेडिट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम. नेहा, फॉर यू.
सो अगर क्रेडिट सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम समझ लिया और एक अच्छे रिटेलर को पकड़ लिया जिसके पास सेल अच्छा है, ग्रॉस सेल अच्छा है, देन होलसेलर्स विल डू. लेकिन उसके लिए तुमको दवा बाजार में भटकना पड़ेगा. If you are ready for that and if you feel like yes I am having that networking skill, I'll help you out for this because I have some known people in the bazaar. So Mahi Jaiswal, coming back to your question, see, it's nothing like you do not know what to start. It's like कि अभी you are confused with क्योंकि your mind is muggling you, आपको घुमा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है. For you I'll say कि Mahi, just connect with me after this session. I am typing my number. You can WhatsApp or call me anytime and then I'll address क्योंकि बाकी लोगों के साथ अभी मैं ये करूँगा, so it will be difficult. So I'm just typing my number. You can connect me on WhatsApp. Any other question apart from Mahi? अगर ये question और भी लोगों को है तो they can connect me on WhatsApp. We'll form one group. We'll conduct one group meeting and I'll explain what to do. I'll explain you how to generate an idea to start your own business. I'll explain you, how to convert that idea into a product or a prototype. Mahi, I hope you have got my number. This is my WhatsApp number. You can WhatsApp me. And in that, no sir, I have, write it down in the chat box. I'm again writing down, please check. I hope now you are able to see my WhatsApp number. No sir. Okay, Pawan Prajapat, no sir. No sir. Okay, आप लोगों को टेस्ट लिंक दिखी थी क्या? आप लोगों को टेस्ट लिंक दिखी थी क्या? नहीं दिखी थी? I don't know why this is happening. Just let me check the system. Okay. So I am dictating my number. कोई बात नहीं. It's 7566783356. I'm again repeating my number. It's 7566783356. I hope now you all have my numbers. और टेस्ट लिंक आप लोगों को इसमें नहीं दिखी है चैट बॉक्स में, डोंट वरी, आई विल ईमेल यू. ठीक है, आई हैव योर ईमेल आईडीज, आई विल ईमेल यू द टेस्ट लिंक. नाउ इट इज फाइन. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. Okay. Yeah, Ruben, I know that, but I am unable to do it right now. Okay, perfectly fine. Any other question? Any other question do you have? No? So shall we end up this session? Okay, so post this session, there will be, an email requesting you for the feedback. I request you to please give an honest feedback. वो feedback ऐसा नहीं होना चाहिए it was a nice session, it was a good session. Something original. ठीक है? ठीक है? So shall we end up this session? Okay, perfectly fine. It was nice to interact with you people on the chat box, although I am the only one who is talking and Shweta ma'am was the only person who was talking. So thank you so much, and I hope you have got something from this, a small workshop. I wish you people can come up with flying colors with different good ideas. Best luck, best wishes. See you again.